વકફ બિલ મુદ્દે જેપીસી મીટિંગમાં હોબાળો જોઈને માર્શલ બોલાવવાની ફરજ પડી. વિપક્ષના 10 સાંસદને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા. સાંસદોનો આક્ષેપ કે અમારી વાત સાંભળવામાં નથી આવતી. અસ્તુદ્દીન ઓવૈસી અને કલ્યાણ બેનર્જીનો સમાવેશ. જેપીસી રિપોર્ટ 27 કે 28 જાન્યુઆરીએ સબમિટ કરવામાં આવી શકે છે. લોકસભા સચિવાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી નોટિસમાં વકફ સુધારા બિલ 2024 પર સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ એટલે કે જેપીસીની આજે દિલ્હીમાં 11 વાગે બેઠક યોજવામાં આવી હતી, જેમાં વકફ સુધારા બિલ પર જેપીસીની બેઠકમાં હોબાળો થયો છે. આ હોબાળો જોઈને માર્શલ બોલાવવામાં આવ્યું. અસ્તુદ્દીન ઓવૈસી અને કલ્યાણ બેનર્જી સહિત 10 વિપક્ષી સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે શું હતો સમગ્ર મામલો? વકફ પર જેપીસીમાં વિપક્ષી દળોના સભ્યોના હોબાળા પાછળનું મુખ્ય કારણ સમિતિના સભ્યોની માંગ હતી કે રિપોર્ટને અપનાવવાની તારીખ બદલીને 31 જાન્યુઆરી કરવામાં આવી. અગાઉ આ અંગે ચર્ચા માટે 24મી અને 25મી જાન્યુઆરીની તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ગુરુવારે મોડી રાત્રે તારીખ બદલીને 27 જાન્યુઆરી કરી દેવામાં આવી હતી. ત્યારે વિપક્ષી સાંસદોની માંગ એવી હતી કે મીટિંગ 27 જાન્યુઆરીના બદલે 31 જાન્યુઆરી સુધી મુલતવી રાખવામાં આવે. વિપક્ષના સાંસદોનો આક્ષેપ છે કે અમારી વાત સાંભળવામાં નથી આવતી. જો કે આ પહેલા પણ આ બેઠકોમાં વિવાદો થયા છે. વકફ પર જેપીસીની આ બેઠક 2 દિવસ સુધી ચાલશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જેપીસી રિપોર્ટ 27 કે 28 જાન્યુઆરીએ સબમિટ કરવામાં આવી શકે છે. ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષના સાંસદો બેઠક છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા, જે બાદ અધ્યક્ષ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ટીએમસી, ડીએમકે, કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીના નેતાઓને જેપીસીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ બેઠકમાં હોબાળા બાદ તમામ 10 વિપક્ષી સાંસદોને વકફ સુધારા બિલ 2024 પર સંયુક્ત સંસદીય સમિતિની બેઠકમાંથી 1 દિવસ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. સસ્પેન્ડ કરાયેલા વિપક્ષી સાંસદોમાં કલ્યાણ બેનર્જી, મોહમ્મદ જાવેદ, એ રાજા, અસ્તુદ્દીન ઓવૈસી, નાસિર હુસૈન, મોહિબુલ્લાહ એમ અબ્દુલ્લા, અરવિંદ સાવંત, નદીમુલ હક, ઇમરાન મસૂદનો પણ સમાવેશ થાય છે. વકફ સુધારા બિલ 2024 પર સંસદ સંકુલમાં યોજાયેલી જેપીસીની બેઠક પર કલ્યાણ બેનર્જીએ કહ્યું કે બેઠકમાં અઘોષિત કટોકટી જેવું વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે. અધ્યક્ષ આ બેઠકને આગળ લઈ રહ્યા છે અને તેઓ કોઈનું સાંભળી રહ્યા નથી. અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે 24 અને 25 જાન્યુઆરીએ બેઠક યોજાશે. હવે આજની મીટિંગનો એજન્ડા બદલી નાખવામાં આવ્યો છે. क्या है कि विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइज को बुलाना चाहिए. आज मीर वाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन के आधार. लेकिन आज जब मीर वाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ. और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है. यदि 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था, 27 को पास होता. तो 27 पहले से ही कैलेंडर में 21 तारीख तक 21 तारीख तक टूर था. टूर के बाद रात में सब नोटिस दिया 24th-25th मीटिंग होगा. दैट इन दी tour itself meeting, Mr. Raja and others requested the chairman to adjourn, fix up the date on 30th or 31st within 3 days. It is not possible. He didn't hear us. Amendments he moved. And he asked. All of a sudden we have got the notice that by 22nd 4 o'clock amendment has to be given. We have given the amendment. No sufficient time. Then हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए, 30-31 में लीजिए. देखिए इस रिक्वेस्ट नहीं सुना. कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज. पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा सब्जेक्ट रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25th में मीटिंग नहीं होगा, 24th and 27th. We have boldly request the chairman. ये देखिए 24 तारीख तो आज हाँ हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन
7-8 तारीख नहीं हो गए, हम लोग को भी कमिटमेंट है 30-31 से हाउस हो रहा है, हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24-25 का प्रोग्राम को 27, 28, 29। कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा। उसका बावजूद भी हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका बावजूद भी वो नहीं सुनना चाहता है। कोई एमपी तो बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। जो उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी का बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है, और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है, समझे ना। कोई चेयरमैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एक डेप्यूटी होम मिनिस्टर, सब डिफैक्टो ऐसा करके चला रहा है। ये जेपीसी फार्स बन गया, लेकिन कंप्लीटली फार्स। कल्याण दादा, जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि 29 तारीख 29 को रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। नहीं, नो प्रोविजन इज देयर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा का एक जो है वो आला वक्त यहाँ दिल्ली आया है, और जेपीसी से हमारी आज मुलाकात हुई है। और वहाँ पे हमने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से जो कंसर्न्स हैं कश्मीर के मुसलमानों के और कश्मीर के लोगों के, वो हमने उनके सामने रखे हैं। एक मेमोरेंडम, डिटेल मेमोरेंडम जो है हमने उनको पेश किया है, जिसमें कि हमने तमाम उन कंसर्न्स का जिक्र किया है जो कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का है और जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, इससे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है, मुसलमानों में तशवीश बढ़ गया है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये एक कोशिश है कि डिसएम्पावर किया जाए कम्युनिटी को, जो कि अफसोसनाक है। और जिस जल्दबाजी से ये सारा मामला किया जा रहा है, हम ये चाहते थे कि वो कश्मीर आएँ, वहाँ पे ख़ुद बाकी लोगों से भी मिलें। अगरचे हमने तमाम उलमा से वहाँ बात की, जम्मू में, कश्मीर में, लेह में, लद्दाख में, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि बहुत जल्दी है कि ये इस बिल को लाना चाहते हैं। जो कंसर्न्स हमारी हैं उनको सुना तो गया, लेकिन उनको एड्रेस करने के हवाले से जो है वो कोई कमिटमेंट नहीं दी गई। निलंबित किया गया है जेपीसी की मीटिंग से, जो क्या वजह है सर? 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजेंट किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी गए, तो आज हमने बुलाया। आज हमने क्लाज बाई क्लाज इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को एज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट में उनके क्या राय है। पहली बार हमने देखा कि ओवैसी साहब जो हाउस में, पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ किया, गालियाँ दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ करके मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे। फिर हमने ये भी नहीं कि उनको निशिकांत दुबे जी ने दूसरी बार के बाद प्रस्ताव किया है। एक बार हाउस में कोशिश की गई, पूरा उसका फिर हमने एडजेंट किया, फिर दोबारा एडजेंट किया। तो आखिर किसी को हमने बुलाया था और वो लोग इस मीटिंग को आज नहीं चलने देना चाहते थे। मीर वाइज और जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन को हम नहीं सुनने देना चाहते। एक तरफ कहते हैं आप उनकी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में जहाँ इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उनके उस स्टेट से एक डेलीगेशन आया, उसको आज खुद विपक्ष सदन में, जैसे हाउस हो, पार्लियामेंट, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना, और जिस तरह से डिरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे,
मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको डिस्कस किया। लेकिन सर आरोप ये लगाया गया है कि अपनी मनमर्जी से सारे शेड्यूल तय किए जा रहे हैं। एजेंडा चेंज किया गया बैठक, शिकायत करने जा रहे हैं, एजेंडा चेंज किया, तारीखें बदली गई। तरीके से आप एजेंडा कोई चेंज नहीं हुआ। हमसे लगातार लखनऊ में उन्होंने गुजारिश किया, ओवैसी साहब ने, नासिर साहब ने, सब ने कि मीर वाइज को बुला लीजिए। कल भी मैंने ओवैसी जी का फ़ोन आया, मैंने बात किया कि तो उन्होंने कहा था आप घर ही पे बुला लीजिए। तो मैंने कहा मैं घर पे क्यों बुलाऊं, पूरे जेपीसी के सामने। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीर वाइज को, उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया और आज के एजेंडे को 27 तारीख। उनका कहना है कि ब्यूरो रिपोर्ट CN24 न्यूज़। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.